Hello everyone. Today we are going to discuss the next topic. Last time we discussed about insurance and number of different insurance, life insurance, health insurance, fire insurance. Up to the fire insurance was completed. Then we also discuss about the features of different types of insurance. हेल्थ इंश्योरेंस में किस तरह के फीचर्स होते हैं, देन आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस में किस तरह के फीचर्स होते हैं, देन फायर इंश्योरेंस में किस तरह के फीचर्स होते हैं, इन व्हाट पर्टिकुलर कंडीशन एंड हाउ विल यू बी benefited by the company, in what kind of condition you should insure yourself. So all these basic knowledge we already discussed, and that information I think it is very, very valuable information you came to know about to deal with insurance company कि कैसे डील होता है, कि अगर आपको एसेट का इंश्योरेंस लेना है तो किस तरह से डील करते हैं, एंड some basic understanding you need to be clear out before you insured, because कि ये सब understanding जो है that every particular insurance company will not discuss with you, because they assume that this is the basic understanding के सबके दिमाग में होंगे, then only you are contacting to them. Is it clear? So basic understanding commerce के लिए आपका clear है. Now the next is marine insurance. Topic is about marine insurance and communication. These two topics we are going to discuss today. So marine insurance means what? What is the meaning of this marine insurance? See, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होता है, वी डील विथ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड इफ वी आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, देन या तो एयरवेज थ्रू आता है गुड्स, या तो सी वेज थ्रू आता है, शिपिंग के जरिए. सो सी वेज से जो भी आता है, विच इज least possible, having least possible cost, and we can import the goods in the bulk quantity. एक साथ bulk quantity में वो आ जाता है. So we can also save the transportation cost, जिससे transportation cost कम हो जाएगा. एयरवेज से सी वेज जो है वो सबसे सस्ता पड़ता है. And that is why this is only the reason why government is developing SEZ. Why government is developing SEZ? S-E-Z. SEZ means Special Economic Zones. Special Economic Zones means पोर्ट जिसको बोलते हैं, मुंद्रा पोर्ट, कंडला पोर्ट, ये नवलखी पोर्ट. सो ऑल दैट पोर्ट्स आर नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि जहां से एक्सपोर्ट सस्ता होगा, इंपोर्ट भी सस्ता होगा. ऑल दैट सर्विसेज टू इंपोर्ट द गुड्स एंड एक्सपोर्ट द गुड्स. ओके, दैट इज दी. तो अब अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, which kind of risk a particular trader or a particular businessman have to bear? So risk of loss of caught your ship by pirates. अगर कोई दूसरे कंट्री का जो है वो वहाँ पे बॉर्डर में चला जाएगा शिप, और वो आपका शिप जो है उसके ऊपर सीज कर लेंगे पायरेट्स या तो फिर दूसरे कंट्री वाले, देन आफ्टर पर्टिकुलर प्रोसेस, वो जो लीगल प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद, देन आफ्टर दे विल अलाउ योर शिप टू गो टू द कंट्री. सो ये एक रिस्क है. देन द होल शिप विल संक. देन अगर वो जहाज पूरा डूब गया तो जो भी माल है जो भी है वो गया. That is also the risk. Then
if that particular ship will meet in an accident with different other particular ship due to collapsed or collision, ship mega damage हो गया और say 40% of goods is already damaged, then what? शिप तो किनारे पे लंगर पे पहुंच गया लेकिन 40% गुड्स जो है वो गया. So all these probability of risk are there, and to protect this risk, to protect your financial loss against this kind of coincidence, we are going to discuss the marine insurance. तो marine insurance companies बहुत सारी होती है. मरीन इंश्योरेंस कंपनी में अगर एक बार घाटा जाता है, then probably that company may close down also. Marine insurance company start करना is not baby talk. It required huge investment. Although उसमें profit भी बहुत ज़्यादा होता है and risk is also there. That is why many a times I use a particular sentence, higher the risk and higher the return. अगर वो मरीन इंश्योरेंस कंपनी 5 साल विदाउट एनी क्लेम लगातार निकल गया, then this company will be economically very sound. क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस अगर कुछ होता नहीं तब पैसा तो वापस नहीं मिलेगा ना भाई. वो कंडीशन होता है, जैसे हेल्थ में हमने डिस्कस किया था. तो सेम पर्टिकुलर इज एप्लीकेबल ओवर हियर बिकॉज यू इंश्योर्ड योर गुड्स फॉर व्हाट? इफ इट लॉस्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट, देन ओनली you will be benefited, not otherwise. If your goods will reach over here very safely in the same condition, then तो आपको वो कॉस्ट जो है वो कस्टमर के ऊपर डाल के आपको वो प्राइस में सेट करना है, बात खत्म. इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 रुपया भी वापस नहीं देगी कि चलो आधा रुपया ले जाओ, कुछ नहीं हुआ तो आधा हम रखेंगे आधा ले, ऐसा नहीं होता. शिप और हुल इंश्योरेंस. सो एज आई डिस्कस राइट नाउ, शिप और हुल इंश्योरेंस पूरे शिप का इंश्योरेंस होता है. एंड बिकॉज in any kind of situation, if that ship is met with an accident, then उसका पूरा इंश्योरेंस जो है वो 500 करोड़ का 600 करोड़ का होगा. then as per the condition the particular company will get benefit. Then freight insurance. Freight insurance means जो भी गुड्स रहता है, if say for example नंबर ऑफ गुड्स का जो है वो कंटेनर होता है, वो कंटेनर बहुत सारे कंटेनर एक शिप में आते हैं, सो दैट इज इंश्योर्ड बाय अ फ्राइट इंश्योरेंस कंपनी. फ्राइट इंश्योरेंस कंपनी यानी कि वो फ्राइट का चार्ज लगते हैं. सिरेमिक के प्रोडक्ट का अलग, प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट का अलग, ओके, सबका चार्ज है. इफ दैट गुड इज डैमेज, होल शिप इज रीच सेफली, लेकिन बीच में अगर कुछ ना कुछ जहाज में हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, हिलचाल होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द गुड्स इज डैमेज्ड. समटाइम्स व्हाट हैपेंड, और कोई जो है वहां पे जो मजदूर काम करता है, इफ दे विल नॉट टेक केयर ऑफ, और उनके हाथ में से अगर वो कुछ गिर जाता है, then that particular goods will damage. तो उसका क्या? So that is the freight insurance. Is it clear? उस पे गुड्स पे जो है वो फ्राइट पे करते हैं. That is अकाउंट्स में शायद आता होगा फ्राइट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में उसका एंट्री आता है. Then cargo insurance. Cargo insurance means once the ship is reached at the port, then after पूरा का पूरा कंटेनर जो है वो शिप में से पोर्ट में पास ऑन होता है. once it is pass on, then after the
port will charge, that is the deduct charges उसको बोलते हैं, गोदी पे जो खर्चा आपको देना पड़ता है. If you will not hand over your goods in a stipulated time period, then you will be penalized for that. वो तो आपको उसका चार्ज भी पे करना पड़ता है. And if that cargo insurance is also providing insurance on port, पोर्ट पे आने के बाद अगर कुछ नुकसान होता है, जल जाता है, डैमेज होता है, whatever, so तो उसको कार्गो इंश्योरेंस बोलते हैं. So you just imagine कि एक सर्विस सेक्टर में एक सर्विस के नीचे देखो कितनी सर्विस इंडस्ट्री पूरी की पूरी काम करती है. Is it clear? Then in that also insurable interest, some basic principles as we discussed earlier, the same particular is applicable over here. Insurable interest means, इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि ये जो भी करते हैं उसका एक आपका इंश्योरेंस लेने का मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम इकोनॉमिक रिस्क ही होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट. देन utmost good faith, whatever information the company demands, you are bound to give the with 100% transparency. If you hide any kind of information, then they will not pass you or give you the full insurance amount. Is it clear? Utmost good faith, विश्वास से सब कुछ होता है. Reliance होना चाहिए. Principles of indemnity. Principles of indemnity means you can demand for the benefit or demand for the insurance to the limit of your loss, not more than that. आपको अगर 3 लाख का उसमें नुकसान हुआ है तो आप 10 लाख का नहीं बोल सकते हो कि 10 लाख का पूरा वो तो गया गया भाई, अब वो तो मैं क्या करूं. इट्स नॉट लाइक दैट. As per the demand, as per the damage occurred, the same particular cost you can demand to the insurance company, not more than that. That is the principle of indemnity. Then proximate cause, वही reason जो है वही आपको लेना है. Once you hand over from the particular port, आप हैंड ओवर कर लेते हो पोर्ट में से, then you pass out from the port area and then from port to reaching to your factory अगर वो बीच में डैमेज हो जाता है, then cargo insurance will not allow you any kind of single claim. वो फिर आपको क्लेम नहीं देंगे क्योंकि आपने वो जो पोर्ट का एरिया जो है वो तो क्रॉस कर लिया. वो एरिया फिक्स होता है इंश्योरेंस के टाइम पे, वो बोल देते हैं वंस यू पास दिस एरिया देन यू आर नॉट अलाउड टू हैव अ पर्टिकुलर सिंगल पेनी ऑफ क्लेम. इज दैट क्लियर? तो एक्सीडेंट कहाँ पे होता है वो सब जो है, तो फिर वो ट्रक का अगर इंश्योरेंस आपने लिया है तो वो ट्रक की इंश्योरेंस की कंपनी के पास आपको जाना पड़ेगा. ये कार्गो इंश्योरेंस को आप क्लेम नहीं बोल सकते हो. Cattle insurance. Cattle insurance is in dairy industry. Dairy industry, dairy products, आप जैसे दूध पीते हो, वो बहुत सारे जो है वो अभी तो गवर्नमेंट ने दिया है ना कि अगर आपको तबेला डालना है गाय भैंस का, then you will get 30% subsidy. 30% subsidy means 10 लाख का अगर आप लोन लेते हो तो 30% 3 लाख आपको वापिस नहीं करने हैं. So all that is depend on the cattle. Cattle will be your asset. अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करते हो तो cattle will be your asset. तो cattle का इंश्योरेंस, एक गाय है, बछड़ा है, भैंस है, उनको अगर कुछ हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है, because of that reason they died, then you will get insurance because की that buffalo and
cow is also carry a cost, you know, वो आपको as per the productivity कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दूध देती है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है, you have to pay for it. And within 1 year, if that particular animals became sick, तो प्रोडक्टिविटी भी यूज हो जाएगा. देन आफ्टर उसके दवाई का खर्चा लगता है, तो उसका इंश्योरेंस होता है. इज इट क्लियर? एंड इंश्योरेंस कंपनी विल पे फॉर इट. जैसे हमारा हेल्थ का इंश्योरेंस है, इसी तरह के कैटल का हेल्थ का इंश्योरेंस. इज इट क्लियर? देन क्रॉप इंश्योरेंस. क्रॉप इंश्योरेंस मीन्स वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड. कोई भी फार्मर है, क्रॉप प्रोड्यूस किया है, बिकॉज ऑफ एडवर्स सीजन, एडवर्स काइंड ऑफ सीजन, अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस. देन आफ्टर अगर कोई एनिमल्स घुस जाता है और वो जो लॉस कर देता है, ग्रोइंग क्रॉप में कुछ लॉस हो जाता है, देन ऑल्सो दे आर गेटिंग द इंश्योरेंस. ओके, तो क्रॉप इंश्योरेंस वो लैंड एरिया को देख के कितना प्रोडक्टिविटी होता है, उस हिसाब से डिफरेंट कंपनीज आर एंगेज इन दैट. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इंश्योरेंस. देखो अब स्पोर्ट्स इंश्योरेंस में क्या है, सचिन तेंदुलकर अगर वो इंश्योरेंस लेता है तो वो डिफरेंट है, वो स्पोर्ट्स इंश्योरेंस नहीं होता. एज वी डिस्कस इन वन पर्टिकुलर अर्लियर वीडियो अबाउट कि वो जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो है वो लेते हैं. सिंगर जो है अपने वो गले का जो है वो उसका इंश्योरेंस लेते हैं. देन आफ्टर वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, अदनान सामी, वन ऑफ द सिंगर, is also having 5 crore or 50 crore something huge amount of tax of insurance of fingers, क्योंकि वो फास्ट पियानो प्लेयर है, उसका एक अवार्ड उनको मिला है. सो लाइकवाइज स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इंश्योरेंस लेते हैं, बट आफ्टर अर्निंग अ गुड फेम they can get a different kind of special insurance. A sports insurance यहाँ पे जो है whatever we are discussing that is for the group. ग्रुप में इंश्योरेंस होता है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम जाती है खेलने और इंडिया में भी खेलती है, एंड ड्यूरिंग दिस गेम अगर कुछ हो जाता है, खरोच जाती है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, सो दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. तो सबका होता है, जितने भी प्लेयर्स है सबका होता है, एंड दैट पर्टिकुलर विल बी प्रोवाइडेड बाय वन सिंगल इंश्योरेंस कंपनी. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. देन ये जो है ये दो अमर्त्य सेन शिक्षा एंड राजेश्वरी महिला बीमा योजना. अमर्त्य सेन शिक्षा योजना टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रन. अगर चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए आपको इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए, एज वी डिस्कस अर्लियर, लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं. There are number of policies list out in ICICI Prudential as well as in LIC as well as in Aviva Life Insurance. Okay, number of life insurance companies are there. Bajaj Allianz में भी है that if the guardian died because of any particular reason, then the whole benefit will be goes to the child, and child के बाकी का पढ़ने का खर्चा that also bear by the इंश्योरेंस कंपनी. सो दिस काइंड ऑफ अमर्त्य सेन शिक्षा योजना जो है वो काम करती है. देन राजेश्वरी महिला बीमा योजना, दैट टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द विमेन्स. के पेरेंट्स जो है वो छोटी बच्ची के नाम का फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं, सेविंग्स हो सकता है, एंड एज पर द पैसेज ऑफ टाइम, as the child grow, immediately the wealth will also grow, that also we will appreciate. और जैसे भी बड़ी हो जाती है लड़की तो उनको अगर कुछ बिजनेस करना है, पढ़ना है, जो भी है, तो उनके लिए वो पैसा उनको मिलेगा. So this is what just they create an awareness
and make the people habituated about the savings. Is it clear? Regular savings. So next is the communication services, next topic. Now communication services means without communication business will not run. Communication means में क्या कि एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के साथ अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, then how will you pass on the proper information? The means of communications are required and as per the time, तो ये आप बोलोगे कि सर पोस्टल सर्विसेज तो बहुत सारे होते हैं, but it will take too much time. पहले के एंसाइन टाइम में क्या था, घोड़े पे कोई एक जो है वो उनको भेज देते थे एंड दे पास ऑन द पर्टिकुलर मैसेज इन कोड, फिर वो कोड को फिर डिकोड करते थे, वहां पे जाके डिकोड करने के बाद समझ जाते थे अच्छा ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है, बीच में कोई पढ़े ना इसलिए उसको कोडिंग में लिखते थे. ओके, सो लाइकवाइज नाउ time is totally changed. Whatever decision we want to take as fast as possible, we have to take decision. That is why means of communication is required. Fastest possible communication is the need of the hour. That is why communication services are also the in demand, we can say. तो you just imagine कि देखो past में क्या था, तो पहले टेलीफोन थे, टेलीफोन के बाद वो क्या आया, पेजर फोन आया. पेजर फोन की एक सराउंडिंग एक एरिया में कोई होता है तो वो पेजर फोन होता है. जस्ट ऐसे मोबाइल में कैसे एसएमएस आता था, उसमें वो पेजर फोन में एसएमएस आता था. ऐसे बीप साउंड बजता है जब भी कोई ऐसे, फिर वो देखता है अच्छा मैसेज आया, ओके ओके करके फिर वो डाल के रख देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड पेजर फोन. सो लाइकवाइज देन आफ्टर मोबाइल फोन आया, मीन्स पेजर फोन सबको एक मोबाइल में डाल दिया. Is that clear? So first is the cellular mobile. First is the cellular mobile. That services is very common. That whatever message you want to pass on in any particular area of the country, and there is no any limit or radius bound by the radius की ऐसा नहीं कि इतने एरिया तक ही आप सीमित में है जो काम कर सकते हो. सेल्यूलर मोबाइल, ईच एंड एवरीवन हैव मोबाइल. तो वो जो है वो पीसीओ से शुरू हुआ था. पीसीओ, एसटीडी पीसीओ, यू नो. सो एक हिस्ट्री में आपको बताऊं कि एसटीडी पीसीओ कैसे इन्वेंट हुआ. यू मे आस्क टू योर फादर दैट कि पापा एसटीडी पीसीओ क्या है, तो एसटीडी पीसीओ जो है वो एक टेलीफोन का बूथ होता है. एसटीडी आईएसडी पीसीओ ऐसा मींस इंटरनेशनल कॉल वहां से पॉसिबल होते थे. Sometimes what happened before that, what was the situation when I was 7 years old at that time, if someone wants to communicate to Mumbai from Morbi, then it will take 2 hours to stand in a queue. लाइन में खड़े रहने के 2 घंटे लगते थे. वो आदमी इतने नहीं थे, बट ज्वाइन करने में 2 घंटा लगता था, एक जगह से दूसरी जगह ज्वाइन करने में. सिर्फ यहां से मोरबी टेलीफोन ऑफिस में लाइन लगती थी, वहां से ज्वाइन करने के बाद मोरबी टेलीफोन ऑफिस जो है वो अहमदाबाद ज्वाइन कर देगी लाइन. उसके बाद वो लाइन ज्वाइन कर देंगे अहमदाबाद वाले जो है वो महाराष्ट्र का जो मुंबई का जो है टेलीफोन ऑफिस, वहां पे कॉल देंगे. वो जो है फिर वो उसको मुंबई का नंबर देंगे, फिर वो मुंबई कॉल करके फिर वो बोलेंगे कि ज्वाइन हो जाओ ज्वाइन हो जाओ. फिर यहाँ पे वो बोलेंगे कि हाँ उनको फोन दो, फिर यहाँ पे जो है वो फोन लगेगा, फिर बोलेंगे कि हाँ बात करो. फिर बात करके वो बोलते थे कि हाँ पैसा मड़ी गया है, खत्म, बस पूरू. क्योंकि उसका चार्ज इतना लगता है ना, जितने भी टेलीफोन ऑफिस बीच में आए ईच एंड एवरी वन का चार्ज जो है वो इसको पे करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो ज्यादा बात भी नहीं होती थी. दैट वाज द टाइम. सो दिस इज व्हाट द कम्युनिकेशन, इट वाज नॉट पॉसिबल. You are living in this environment.
कि जहां पे इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्टली आप मोबाइल में से मैसेज करके फोन पे बात कर लेते हो एंड व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर देते हो. दिस इज व्हाट दी रिवॉल्यूशन यू नो इन कम्युनिकेशन. तो ये जो है वो बेसिक से शुरू हुआ. एसटीडी पीसीओ के बाद क्या हुआ, घर से ही फोन है तो घर से ही आप फोन के कोई भी कोड लगा के डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पे यूएस पे बात कर सकते हो. बीच में जितने भी सर्विस थे किक आउट फ्रॉम द मार्केट. तो रिवॉल्यूशन से आपका बिजनेस बंद हो ही सकता है. दिस इज दी, ये कोई नया नहीं है, ये तो बहुत पहले से चला आता है ना. द सेम पर्टिकुलर सिचुएशन वाज देयर. समझ में आया? सो एंड ये एसटीडी पीसीओ को निकाल के, एसटीडी पीसीओ को निकाल के डायरेक्ट आपके घर से आप बात कर सकते हो, ऐसा रिवॉल्यूशन, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी वो कौन लाया? The particular person from the Saurashtra, Sham Pitroda. श्याम पित्रोड़ा नाम है, उसको फिर शैम पित्रोड़ा कर दिया है. श्याम पित्रोड़ा इन्वेंटेड दिस. और एसटीडी आईएसडी पीसीओ में से वो जो है वो डायरेक्टली आप घर से कॉल करके यूएस कोई भी वर्ल्ड के कोई भी कोने में बात कर सकते हो. इज इट क्लियर? सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेडियो पैगिंग सर्विसेज. रेडियो पैगिंग सर्विसेज, मैंने जो पेजर फोन बोला वो, कि इन अ पर्टिकुलर रेडियस, अगर आप सिटी में हो तो विद इन द सिटी लिमिट यू कैन pass on the message. अगर मैं उस एरिया के बाहर हूं then I will not receive any kind of message, you know, that is radio pegging services. Then fixed line services. fixed line services, अगर से for example बहुत ही बड़ा कैंपस है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चाहिए, तो वो फिक्स लाइन सर्विस हुआ कि इतनी ही लाइन में आप बात कर सके हो, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो. दैट पर्टिकुलर फोन यू कैन नॉट यूज टू टॉक एट योर होम, विल नॉट अलाउ. समझ में आया? उसी डिपार्टमेंट, उसी एरिया के डिपार्टमेंट से साइन वो ज्वाइन होगा. दैट इज फिक्स लाइन सर्विसेज. देन केबल सर्विसेज, केबल ऑपरेटर, यस, ये भी बहुत ही अच्छा बिजनेस था. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया. कोई भी मूवी जो है वो आप टीवी में देख लो, केबल ऑपरेटर जो है, केबल ऑपरेटर वहां पे मूवी सेट करेगा, यहाँ पे आपको टीवी में दिखेगा. नेट से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होता है, बहुत बड़ी नेट, और एंड यू हैव टू पे मंथली रेंट ऑन दैट. इज इट क्लियर? दैट इज द केबल सर्विसेज. देन वी-सैट सर्विसेज, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, मीन्स की गवर्नमेंट एजेंसी में होता है. वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल. These services are provided in government services to make the fast possible communication with defense, with the country itself, within the country itself, whatever message a particular person want to pass on. तो वो मशीन कैसे काम करता है? Any time you can pass on the information and as per the time, if you अगर आपने उसमें time बोल दिया है, डाल दिया है, तो immediately the machine itself will pass on the signal that this is an emergency message. तो वो आपको जो है वो मिल जाएगा. That is the वी-सैट services. Then DTH services, direct to home. Direct to home means ये केबल सर्विस जो है अब वो मार्केट में नहीं है. DTH सर्विसेज आ गया. सेट टॉप बॉक्स है ना सबके घर, सेट टॉप बॉक्स, एंटेना बेंटेना वो सब कुछ निकल गया. छतरी लगा दो और सेट टॉप बॉक्स लगा दो. नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ चैनल्स, घर बैठे बैठे देखो. सो दिस इज व्हाट द रिवॉल्यूशन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. जितना टेक्नोलॉजी के साथ रहोगे
If you know how to make better use of technology, mind my word, better use of technology, positive use of technology, then you may grow in your life. Is it clear? ये एंडलेस है, टेक्नोलॉजी का कभी कोई एंड ही नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का बेटर एंड पॉजिटिव यूज इज टोटली इन योर हैंड. उसका पॉजिटिव यूज आपको ही करना है. सो वी एंड अप आवर डिस्कशन. इफ यू हैव डाउट एनी, देन यू आर फ्री टू गिव मी अ कॉल एनी टाइम. वैसे कॉल आपके कम आते हैं. I hope that everything is clear to you, and be safe. Take care of yourself and your family members. Thank you very much. Thank you.